الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, नौजवानों, माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने एक मर्तबा फिर हमारी ज़िंदगी में ईद की बहार दिखाई है और ईद की खुशियाँ, ईद का खुशियों का पैगाम अल्लाह ताला ने हम सबको नसीब फरमाया है। अल्लाह करे ये खुशी, अल्लाह करे ये खुशी हर घर तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे, हर फर्द तक पहुँचे। इस खुशी से सारे लोग फ़ायदा उठाएं। मोहतरम दोस्तों और साथियों, चूँकि ईद का खुतबा मुख्तसर होता है, इसलिए बिला ताख़ीर मैं कुछ अहम बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि जो लोग कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जम जाते हैं, डट जाते हैं, तो मुफस्सिरीन किराम बयान करते हैं कि जब इनकी मौत का वक्त होता है, किसके? जो लोग कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, जो लोग अल्लाह से वादा कर लेते हैं कि तू मेरा रब है, हम तेरी इबादत करेंगे, तुझे सजदा करेंगे, तेरी इबादत करते रहेंगे, जो इस तरह का अहदो पैमान अल्लाह ताला से कर लेते हैं, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसी पर जम जाते हैं, जिंदगी की आखिरी सांस तक उस पर डट जाते हैं। कोई भी हालात हो, कोई भी मौसम हो, लाख आंधियां चले, लाख मुश्किलात और परेशानियां आए, वो कभी रब की बंदगी से टस से मस नहीं होते हैं, वो उसी पर कायम रहते हैं, जमे रहते हैं। तो जब ऐसे लोगों की मौत का वक्त आता है, जब इनकी रूह कब्ज करने का वक्त आता है, दुनिया से जाने का जब वक्त आता है, तो ऐसे मौके पर आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है, आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और जो शख्स मरने वाला है उसे आकर कहते हैं कि तुम रंज न करो, गम न करो, परेशान न हो, ना तो अपने माजी के हवाले से कि अब तुम दुनिया से जा रहे हो, तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा, तुम्हारी औलाद का क्या होगा, इस सिलसिले में गम न करो, रंज न करो, और न अपने हाल के हवाले से कि अब दुनिया से जा रहे हो तो कब्र में क्या होगा, कैसे कैसे मसाइल आएंगे, इस सिलसिले में भी टेंशन ना लो, परेशान ना हो। और फिर मुस्तकबिल के हवाले से भी फरिश्ते कहते हैं वो अब शुरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, कि अपने हक में जन्नत की बशारत कबूल कर लो। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है
है ये कि मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत की खुशखबरी सुना देते हैं। ये उन लोगों की फजीलत है जो अहले इस्तिकामत हैं, जो दीन पर डटे रहते हैं, इबादतों पर कायम रहते हैं, रब की बंदगी मुसलसल करते रहते हैं। ये वो खुशनसीब लोग हैं जिनके बारे में ये अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। और इसीलिए प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अहब्बुल अमाली इलल्लाह अदवमुहा व इन कल, कि अल्लाह ताला के पास सबसे महबूब अमल, पसंदीदा अमल वो है जो हमेशा किया जाए, जो मुस्तकिल किया जाए, भले से थोड़ा ही सही, लेकिन उसे छोड़ना नहीं, तर्क नहीं करना। आप देखते हैं हमारे समाज और मुआशरे में जो मुसलमान इबादत करते हैं ना, उनकी दो किस्में होती हैं। एक मुसलमान वो होता है, मुसलमानों का एक तबका वो होता है जो जुज़ वक्ती इबादत करता है, कभी कभार कर लेता है। जैसे रमजान आया तो जोश मारा, कर लिया इबादत। अब शव्वाल का चांद नजर आया है ना, अभी आप देख रहे हो ईद में इतना बड़ा मजमा है, अब कल से बल्कि अभी जोहर से आप देख लेना मस्जिदें वीरान नजर आएंगी। वही नमाजी जो 11 महीने रमजान से पहले थे वही आपको नजर आएंगे, यानी वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है, यही आपको देखने मिलेगा। ये हमारा पिछले कई सालों का तजर्बा है, यही होता आया है और यही होगा। आज के बाद से, अभी ईद की नमाज के बाद से यही होने वाला है। जोहर की नमाज में आप देखना तादाद कितनी मुख्तसर हो जाएगी। ऐसे लोगों की अल्लाह ताला के पास ना कोई अहमियत है, ना उनकी कोई कद्र है, ना उनका कोई मकाम और मर्तबा है। अल्लाह के पास ये लोग थर्ड क्लास के लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं। ये समाज पर, जमीन पर बोझ हैं, धरती के बोझ हैं, जो इस तरह का खेल खेलते हैं कि रमजान आया तो चंद दिन इबादत कर ली, रमजान के बाद रब को फरामोश कर दिया। ये ऐसे लोग हैं जो रब के साथ खिलवाड़ करते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को बख्शेगा नहीं, दुनिया में भी सजा देगा, आखिरत में भी सजा देगा। अभी बताता हूं मैं वो सजाएं कैसी होती हैं। मेरे पास वक्त थोड़ा सा रहेगा, आज आपसे माजरत के साथ चाहूंगा। और जो लोग मुस्तकिल करते हैं ना इबादत, याद रखो अल्लाह के पास बड़े महबूब होते हैं वो लोग। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सहाबा किराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरबियत दी है, ये मिजाज दिया है कि ऐ मेरे सहाबा, जब भी कोई काम करो नेकी का तो मुस्तकिल करो, हमेशा करो। एक दिन, 2 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन करके छोड़ना नहीं, हमेशा करो। ये अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खिताब करते हुए कहते हैं, या अब्दुल्ला ला तकुन मिस्ला फुला काना यकुमुल लैल फतरक क़ियामुल लैल। ऐ अब्दुल्ला, उस शख्स की तरह ना हो जाना जिसने क़ियामुल लैल, तहज्जुद की नमाज, तरावी की नमाज चंद दिन तो पढ़ी, 1 हफ्ता पढ़ा, 10 दिन पढ़ा, फिर पढ़ना छोड़ दिया। अब्दुल्ला, तुम उन जैसे नहीं होना, तुम उन जैसे नहीं होना। ये नबी ने मिजाज दिया है। वक्त नहीं है मेरे पास, ऐसी कई दलीलें हैं, कई मिसालें हैं, कई वाकयात हैं कि प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इज्तिमाई तौर पर भी, इनफिरादी तौर पर भी नसीहत करते थे कि रब की बंदगी हमेशा करो। मेरे भाई, एक बहुत बड़ी बात मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहने जा रहा हूं। सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत है और आखिरी आयत का आखिरी टुकड़ा है। इस वक्त पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान, मुल्की सतह पर लीजिए और इसी तरीके से पूरे आलमी सतह पर लीजिए, जो मुसलमानों की सूरत हाल है, उस पस मंजर में, उस तनाजुर में मुझे आपसे 5-10 मिनट की गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत है, आखिरी आयत का आखिरी टुकड़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, कि अगर तुमने, ऐ मुसलमानों, अगर तुमने रूगर्दानी की, पीठ फेरा अगर तुमने, तो हम
तुम्हें हटाएंगे, तुम्हारी जगह दूसरी कौम को लाएंगे और दूसरी कौम तुम्हारी तरह नहीं होगी। यानी अल्लाह ताला ने अपना एक कानून बताया, अल्लाह ने अपना एक सिस्टम और दस्तूर बताया कि इस रुए जमीन पर, अल्लाह ने कहा इस रुए जमीन पर जो हमारी सुनेगा, हमारे नक्शे कदम पर चलेगा, जैसा हमने कहा है वैसा करेगा, हमारी इबादत और बंदगी करता रहेगा, हम ऐसे लोगों को कायम रखेंगे। वरना जब इनकी नाफरमानियां हद से बढ़ेंगी हम इनको हटाएंगे, दूसरों को लाएंगे। और ये तारीख है, आप जानते हैं कौम यहूद जो इस रुए जमीन की ऐसी कौम थी जिसके बारे में अल्लाह ने कहा था इन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, हमने तुम्हें सारी दुनिया वालों पर फजीलत बख्शी है। लेकिन इनकी नाफरमानियां जब बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने कौम यहूद को इस दुनिया से तबाह किया, बर्बाद किया, खत्म किया और कह दिया तिल का उम्मतुन कद खलत, ये एक उम्मत थी जो गुजर गई। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, ऐ उम्मते मुस्लिमा अब हमने तुम्हें वो मकाम बुलंद अता कर दिया है। ये अल्लाह ने अपना एक कानून बता दिया सूरह बकरा में कि जब कोई कौम अल्लाह की नाफरमान होती है, दीन से दूर होती है, हम उसे ख़त्म करते हैं और दूसरों को लाते हैं ताकि दीन का काम हो। मेरे भाई, क्या नबी की इस उम्मत में इस तरह का वाकया कभी गुजरा है कि मुसलमान दुनिया परस्त हो गए, मुसलमान दीन से दूर हो गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें रिप्लेस कर दिया, अल्लाह ने उन्हें खत्म कर दिया और दूसरों को अल्लाह ने मौका दिया? क्या तारीख में ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 656 हिजरी का जमाना है, 656 हिजरी का जमाना है। उस वक्त बगदाद का मुल्क सुपर पावर मुल्क था। मौर्रिखीन ने लिखा है तकरीबन 18 लाख से 20 लाख मुसलमान बगदाद में आबाद थे और वो मुल्क ऐसा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में, तालीम के मैदान में, जोग्राफिये के मैदान में, रियादी के मैदान में ये बगदाद के लोग दुनिया में नंबर 1 थे। इनका कोई सानी नहीं था। बगदाद ऐसा मुल्क था। लेकिन ये बगदाद के मुसलमान अय्याश हो गए, फिरका परस्त हो गए, अपनी अना का शिकार हो गए, दीन से दूर हो गए, दीनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, दावती काम को फरामोश कर दिया। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने क्या किया जानते हैं? अल्लाह अपने कानून के तहत क्या किया? इन 18 से 20 लाख मुसलमानों पर मंगोल नामी बस्ती से तातारी कौमों को मुसल्लत कर दिया। ये तातारी हलाकू खान इतना बड़ा जालिम अपनी पूरी फौज के साथ जगह जगह जाकर कत्लेआम किया है। तारीख उठाइए, उठाकर पढ़िए कि सिर्फ 40 दिन में 18 से 20 लाख मुसलमानों को इस बगदाद की सरजमीन से साफ किया गया, कत्ल किया गया। मौर्रिखीन लिखते हैं कि मुसलमानों के खून बगदाद की गलियों में ऐसे बह रहे थे कि जब घोड़े तातारी कौम के चलते तो खून दीवारों की जीनत बन जाया करते थे। और एक तातारी औरत अगर देखती कि चंद नौजवान मुसलमान जिंदा हैं, सलामत हैं, कहती तुम अभी तक जिंदा हो, रुको यहीं ठहरो, मैं अभी तलवार लेकर आती हूं, तुम सबके सर कलम करूंगी। वो नौजवान थर थर कांपते वहीं ठहरे रहते। औरत जाती तातारी कौम की तलवार लेकर आती, सर कलम कर देती। उन लोगों में से एक का काम यह था कि मुसलमानों के सर काट काट कर उनके मीनार, उनके सुतून बनाया करते थे। मेरे भाई, तारीख है ये, तारीख है ये। इस तरह का वाकया आया। इब्नुल असीर एक बहुत बड़े मुअर्रिख हैं। इब्नुल असीर रहिमहुल्लाह एक तारीखदां हैं, तारीख लिखी है उन्होंने, मुअर्रिख हैं ये। वो लिखते हैं कि मैं जब ये बगदाद की तारीख लिख रहा था तो मैंने ये महसूस किया कि इस रुए जमीन पर जब से दुनिया आबाद हुई है उस वक्त से लेकर आज तक इस तरह का हादसा पेश नहीं आया। जिस तरह सफ़ाकियत, दरिंदगी और कातिलाना हमला हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ तारीख में। इब्नुल असीर रहिमहुल्लाह ने ये लिखा है। मेरे भाई जानते हैं
40 दिन में सफाया हो गया। कब? 656 हिजरी के ज़माने में। ये अल्लाह का कानून है कि मुसलमान अगर गफलत का शिकार होगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा और होना भी चाहिए। ये अल्लाह का कानून है, हम अल्लाह के कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। अच्छा, फिर 656 हिजरी के बाद की तारीख भी पढ़िए। क्या हुआ? 57 हिजरी, 58 हिजरी, 59 हिजरी, 60, 660 हिजरी आते आते ऐसा इनकलाब आ गया कि हलाकू खान, जिसने जो तातारियों का सरगना था, जैसे सबको खत्म किया, उसी के खानदान में से एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल किया, मुसलमानों के साथ मिला, इस्लाम में आया। धीरे धीरे उसके साथ इस्लाम के धीरे धीरे उसके जो सिपाही थे सब इस्लाम में आते चले गए और ये मुसलमानों के साथ खड़ा होकर के हलाकू खान का मुकाबला करने के लिए तैयार हुआ। और देखते ही देखते चंद महीनों में और सालों में, साल के अंदर ऐसा हुआ, वो हलाकू खान जो जुल्म और सितम की इंतहा कर रहा था अपने अंजाम को पहुंचा, हारा, शिकस्त पाया और ये तातारी कौम मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। अल्लाह ने तातारियों को इस्लाम से सरफराज फरमाया, फिर उनके जरिए अल्लाह ने इस्लाम के नाम को बुलंद किया। अल्लामा इकबाल ने लिखा है आया यूरिश तातार के अफसाने से, है आया यूरिश तातार के अफसाने से, यानी तातार के फितने से, है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पास बाम मिल गए काबे को सनम खाने से। मेरे भाई, मुहाफिज मिल गए काबा को सनम खाने से, यानी बुत कदे से अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक देकर उनको उठाया और वो दीन इस्लाम के मुहाफिज बन गए। मेरे भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूं, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और पूरी दुनिया की, इसके जिम्मेदार हम मुसलमान हैं। हमारी अपनी सुस्तियां, हमारी अपनी कोताहियां हैं जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हैं मेरे भाई। और अगर अभी भी नहीं सुधरोगे, यही होगा, यही होगा। और इसके पहले उंदुलुस में भी हुआ था, उंदुलुस में भी हुआ था, जहां पर 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है, 800 साल तक। और ये यहाँ के मुसलमान भी अय्याश हो गए, दुनिया परस्त हो गए, नस्ली गुरूर के शिकार हो गए। अल्लाह ताला ने उन पर ईसाइयों को मुसल्लत कर दिया और देखते ही देखते उंदुलुस भी हाथ से जाता रहा, यहाँ तक कि जब मुसलमानों पर काबिज हो गए तो जानते हैं क्या शर्तें रखी उन्होंने? ऐ मुसलमानों, तुम्हें इस उंदुलुस में अब रहने की इजाजत नहीं है, ये अब हमारा मुल्क है, तुम निकलो यहां से। मुसलमानों को उंदुलुस से भगाया गया। नंबर 2, अगर नहीं जाओगे तो तुम्हें एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि ईसाई बन जाओ। अगर ईसाई बनकर रहना चाहते हो तो उंदुलुस में रह सकते हो, और अगर नहीं, ना तो जाओगे ना ईसाई बनोगे, तो तीसरे नंबर पर सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। ये हुआ है उंदुलुस में। और गरनाता का आखिरी किला अबू अब्दुल्ला मोहम्मद जब शिकस्त पा गया और आखिरी किला मुसलमानों का जब उसकी चाबी ईसाई बादशाह के हाथ में दे रहा था, तो हसरत भरी निगाहों से देखकर आंसू बहा रहा था, रो रहा था। उसकी मां ने तारीखी जुमले कहे, ऐ मेरे बेटे, जब तुझसे मुसलमानों की हुकूमत संभाली नहीं गई, मुसलमानों का किला तुझसे महफूज रखा नहीं गया, तो औरतों की तरह आंसू बहाने से क्या फायदा? मेरे भाई, इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था हम सबको खिताब करके कि अपने आप को संभाल लो मुसलमानों, अमल करो। रमजान आया तो बंदगी करोगे फिर छोड़ दोगे। अल्लाह से खेल करते हो, मजाक करते हो, ये दिन मजाक है, अमल करो। समझाया था अल्लामा इकबाल ने भी। और उन्होंने अपने शेर में कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारा वजूद था इस मुल्क में,
किसी को पता भी नहीं रहेगा, ऐसी हालत हो जाएगी मेरे भाइयों। लेकिन हमें मायूस नहीं होना है, फिर भी हमें मायूस नहीं होना है। अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हम रमजान से फारिग हुए हैं, इबादतें की हैं हमने, आज खुशी का दिन है, ईद का दिन है, रब से मगफरत मांग लो, रब से गुनाहों की माफी मांग लो। लिहाजा अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह हम सबको बख्श देगा। तो मेरे भाइयों, मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के सदक़ात व खैरात को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, इस मौके पर मैं हमारे मीरा भाईंदर की महकमा पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हम मुसलमानों की तरफ से, मीरा रोड के सारे मुसलमानों की तरफ से यहाँ मीरा भाईंदर की महकमा पुलिस का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि पूरा महीना रमज़ान का बड़े सुकून से गुजरा है, बड़े इत्मीनान से गुजरा है, और यकीनन इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए, मीरा रोड के अंदर जो जम्मे गफीर इतनी बड़ी तादाद में लोग खरीदी करते हैं, रास्तों को थोड़ा सा इन्होंने ब्लॉक किया, तीन पहिए वाली गाड़ियां, 4 व्हीलर को रोका मेरे भाइयों, इसलिए कि हमारे लिए आसानी हो, और उन्होंने बहुत सारी मेहनतें की हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। मेरे भाइयों, अब आखिर में चलते चलते एक बात आप सुन लीजिए कि आपको पता है कि आपके इसी मीरा रोड में एक मस्जिद का इजाफा हो चुका है। अल्लाह के फजलो करम से एक मस्जिद नई वजूद में आ चुकी है, और बनने के बाद मजीद उसकी तौसी के लिए 2 गाले और खरीदे गए हैं। आपके इल्म में है तो आज खुशी का दिन है, सदका तो खैरात का दिन है। खुशी के मौके पर सहाबा अपना माल खर्च करते थे, बेदरे खर्च करते थे। आज इस खुशी के मौके पर आपसे गुजारिश है, औरतों से भी गुजारिश है कि मस्जिद की तामीर के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। और मेरी माँ और बहनों, आप भी सुनो, ईद के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास जाया करते थे और औरतों से कहा करते थे, ऐ औरतों, तुम्हारा बड़ा मसला यह है कि मैंने तुम्हें जहन्नम में ज्यादा देखा है, तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा है, ऐ औरतों की जमात, लिहाजा तुम क्या क्यों, इसलिए कि तुम्हारा मसला यह है कि तुम लान तान बहुत करती हो, बात बात पर उल्टी सीधी बातें करती रहती हो, और अपने शौहरों की नाफरमानी करती हो, नाशुक्री करती हो, इस वजह से मैंने तुम्हें जहन्नम में ज्यादा तादाद में देखा है। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर अपनी तादाद जन्नत में कम कराना चाहती हो तो तसद्दक़ना, सदका करो। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन औरतों से खुसूसी कहा है कि सदका करो, जो माल अल्लाह ने दिया है अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तो मेरी माँ और बहनों, आज आपके लिए मौका है, खुशी का दिन है, नबी की तालीम है, नबी का हुक्म है, तो लिहाजा आप ज्यादा से ज्यादा सदका करो और अल्लाह के घर की तामीर के लिए आप ताउन करते जाओ। और मर्द हजरात, आपसे भी गुजारिश है कि आप सब भरपूर ताउन करते हुए जाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की नेकियों को कबूल फरमाए। और मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Allah